Hello students, today we are doing chapter 5 of the book Hornbill, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. Nani Palkhiwala was an Indian jurist and economist who was born in 1920 and he died in 2002. He was a far-sighted economic thinker and a legendary lawyer, and he was a very strong supporter of Indian Constitution also, and he was a man of several gifts. He was having many talents who made him famous in whichever field he worked in. He had written this article or chapter to make the readers concerned about our ailing planet, or the planet which is becoming sick day by day. So it is a chapter which makes us feel concerned and be threatened about the global temperature or the destruction our planet is facing. So we are starting chapter now. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. So the writer is saying here कि कोई भी किसी और मूवमेंट को इतना याद नहीं कर सकता जितना कि ग्रीन मूवमेंट को, जिस तरह से ग्रीन मूवमेंट जो था एकदम से फेमस हुआ ये 25 years ago. सो और कोई मूवमेंट इस तरह से याद नहीं आता. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सो दिस वॉज द पार्टी विच वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, ग्रीन पार्टी. आफ्टर दैट, सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. इट हैज़ कम फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. वी हैव शिफ्टेड. वन होप्स irrevocably. So one hopes, we hope, हम उम्मीद करते हैं that we have shifted irrevocably, finally, from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. So in this line the writer is saying that ours was the mechanistic view. We believed as if like a machine. We didn't think the earth as a human being. But now we take this earth as a whole, holistic and ecological view. Means कि अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में नहीं आइडेंटिफाई करते. We are taking this earth as a whole, one part only. It is a shift in human perceptions. So ये change आया है. First in earlier times we are taking it as granted. लेकिन अब ये जो हमारे व्यूज़ में ये shift up हुआ है, now we are understanding that this earth is the living being like one of us, as revolutionary, and it is, this shift is revolutionary, as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve round the sun. जैसे कि once Copernicus ने बताया था कि earth and the other planets they revolve round the sun, and when we heard about that, this theory, it was a revolutionary idea at that time because we were not believing that, और हमें पता ही नहीं था कि ये भी होता है. और जब हमने कॉपरनिकस के ये आइडिया सुने थे, that was a revolutionary time in our thinking. The same is here also. We were having a mechanistic view about the earth, but now when we came to know that the earth is also a living being like us, that is also also a revolutionary idea for us. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. मतलब पूरा वर्ल्ड में सभी को ये अवेयरनेस हुई, सभी ये समझने लगे कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स. और इसके ही हम पार्ट्स हैं.
इट मीन्स ये हमारा पार्ट नहीं है, हम इस अर्थ के पार्ट्स हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. इसकी अपनी नीड्स हैं, वाइटल, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इनके चलते रहते हैं. किस तरह के प्रोसेसेस चलते रहते हैं? इट मीन्स जो लाइफ साइकिल इनकी चलती है, अर्थ अपना सॉइल जो है अपने आप बनती है और फिर डैमेज भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, कहीं और बह जाती है. वाटर साइकिल है जो इसके अपने आप बनती है. फूड चेन है जो इनके अपने आप बनती है. इट हैज़ इट्स ओन केमिकल प्रोसेसेस. मेटाबॉलिक नीड्स मीन्स केमिकल प्रोसेसेस गोइंग ऑन एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड. हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे क्या मीनिंग आता है कि जस्ट एज द अर्थ नीड्स प्लांट्स और ट्रीज फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर द रेन साइकिल और द वाटर साइकिल टू गो ऑन, एंड वी आर कटिंग these trees continuously, exploiting this earth, its resources also. So we have to respect the earth's metabolic needs also. If we are going on cutting the trees like this, one day will come that earth will take its revenge from us. Just like today also, some of the incidents you have heard about that उत्तराखंड ट्रेजिडी, सुनी है आपने उत्तराखंड ट्रेजिडी जो हुई थी कि जो सारा का सारा वो बिल्कुल बह गया तो कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे. सो दैट वाज आल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर ओन वर्क, आवर ओन डीड्स. ह्यूमन बींग्स ने जो डीड्स की हैं, जो नेचर के साथ गेम खेला है, प्ले किया है, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट गेम. सो इफ वी आर गोइंग ऑन प्लेइंग विद नेचर लाइक दिस, वी विल हैव टू रिपेंट फॉर दैट. The earth's vital signs reveal a patient in declining health. Earth's vital signs, जो अर्थ के इम्पोर्टेंट साइंस हैं वो शो कर रहे हैं कि अर्थ एक पेशेंट बन चुकी है. हैविंग अ डिक्लाइनिंग हेल्थ, इट इज़ बिकमिंग सिक डे बाई डे. वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस. हमें हमारी मॉरल ड्यूटीज़, एथिकल ऑब्लिगेशंस रियलाइज होनी स्टार्ट हो चुकी हैं टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, सो दैट वी कुड बिकम गुड लीडर्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेजेसी टू फ्यूचर जनरेशंस. दैट वी शुड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, वी शुड कीप दिस लेजेसी. जो ये हमारी लेजेसी है, अर्थ है, इसकी नेचर है, ये हम फ्यूचर जनरेशंस को एज इट इज़ प्रोवाइड कर सकें. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. So this concept जो sustainable development है, I think you have heard about this word sustainable development. इसका means क्या होता है? That development which in the present times it is fulfilling the needs of the present day human beings also, without hampering the needs of, without compromising the needs of the future generation. वो development जो हम लोगों के लिए भी है और साथ ही साथ हम future generations की needs को डैमेज नहीं कर रहे हैं. That is known as the sustainable development. So this concept was popularized by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development, that is the meaning, that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. What I have told you just now. That is without stripping the natural world of resources future generations would need. Means कि हम फ्यूचर जनरेशन्स को जो चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, उनको हम ख़त्म ना करें, उनको डिस्ट्रॉय ना करें और तब डेवलपमेंट हो. दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन द जू एट लुसाका, ज़ैम्बिया में लुसाका में जू है, एंड देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स. पिंजरा है और पिंजरे में एक नोटिस लिखा हुआ है. नोटिस है उसमें द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. नाउ कौन एनिमल हो सकता है यहाँ पे? इट कैन बी द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. यू विल बी सेइंग लॉयन होगा, मैम राइनो होगा, बट नो, इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल. कोई एनिमल नहीं है वहाँ पे, बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. देयर इज़ अ मिरर इन विच वी ऑल, एवरीवन इज सीइंग हिज ओन फेस. हम अपना फेस देखते हैं. इट मीन्स कौन है सबसे डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ? वी ह्यूमन बींग्स. हम कैसे डेंजरस एनिमल्स हैं? बिकॉज एनिमल्स डिस्ट्रॉय नहीं करते अर्थ को, बट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लैनेट अर्थ, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं. वी ourselves are destroying that earth. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries,
a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. तो हम उन एजेंसीज को थैंक्स कहते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जनरेट हुई हैं, बनी हैं, कि उनकी वजह से वी हैव कम टू नो, हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन अस. डॉन मीन्स होता है सुबह, तो यहाँ पे मतलब डॉन है कम टू अस, कि हम हमारे दिमाग में भी, हमारे दिमाग भी खुला है, माइंड भी खुला है, एंड वी कम टू नो दैट वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. ही हैज़ मीन्स वी पीपल. वी हैव रियलाइज्ड, हमें अब समझ आया है, दैट वी हैव टू शिफ्ट अप आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ डोमिनेटर, कि जो हम आज तक डोमिनेट करते आए हैं अर्थ को, वी शुड हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट बीइंग डोमिनेटर टू वन बेस्ड ऑन पार्टनर. अब हमें उस अर्थ को डोमिनेट करने के बजाय उसके साथ पार्टनरशिप में चलना चाहिए. वी आर द पार्टनर. कि इसी तरह से अर्थ है, इसी तरह से वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्स हैं, फ्लोरा एंड फोना है, जिस तरह से उनको वो रिसोर्सेज चाहिए, सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. वी आर द पार्टनर नॉट द डोमिनेटर. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने लिस्ट बनाई है, कैटलॉग मीन्स लिस्ट बनाई है, अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज जिसके साथ हम अर्थ को शेयर कर रहे हैं. कैन वी इमेजिन दिस नंबर? इट्स लार्ज नंबर, 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज. इनके साथ हम इस अर्थ को शेयर करें. इट मीन्स दे आर ऑल्सो लिविंग ऑन दिस अर्थ विद us and they are also using the same resources. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. और अभी तक तो uncatalogued भी लिविंग स्पीसीज भी हैं जिनको लिस्ट में नहीं डाला गया अभी तक. बायोलॉजिस्ट्स reckon, they guess, वो guess करते हैं that about 3 to 100 million other living species, अभी तक इतनी सारी स्पीसीज और हैं still languish, जो अभी तक भटक रही हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, अननोन है, अननेम्ड इन इग्नोमीनियस डार्कनेस. बहुत ज़्यादा डीप डार्कनेस में वो पड़ी हुई हैं. इग्नोमीनियस मीन्स, इट मीन्स वैसे तो ये होते हैं कि दैट मेक्स अस फील एम्बेरेस्ड. वी आर just shameful of us that we don't know that we are sharing this earth with so many of species. but यहाँ पे ignominious darkness refers to कि dark darkness में पड़ी हुई हैं जिनका अभी तक भी किसी को पता नहीं चला है. it means 1.4 million living species लिस्ट में हैं और उसके अलावा 3 to 400 million other living species are there. we don't know about them. one of the early international commissions which dealt inter alia with the questions of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. So ये एक international commission है and it also deals, inter alia means among other things, और चीज़ों के साथ साथ और इश्यूज़ के साथ साथ ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ भी डील करता है, इनके क्वेश्चंस के साथ भी डील करता है. एंड इट्स नेम इज़, इस कमीशन का नाम है ब्रांड कमीशन, और इसमें एक बहुत फेमस इंडियन है एज वन ऑफ इट्स मेंबर, मिस्टर L.K. झा. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और जो फर्स्ट रिपोर्ट इनकी आई थी उसमें एक मेजर क्वेश्चन रेज किया गया था, एक मेजर इशू उठाया गया था. आर वी टू लीड our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक स्कोर्स्ड प्लैनेट छोड़कर जा रहे हैं. स्कोर्स्ड होता है जो धूप में झुलसी हुई, जली हुई, बर्न्ड. और कैसे वो बर्न्ड होगी धूप में? जब वहाँ के ट्रीज जो हैं काट दिए जाएंगे. सो क्या हम एक ऐसी स्कोर्स्ड प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं, अर्थ छोड़ के जा रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जो कि डेजर्ट में बदलती जा रही है. इम्पावरिश लैंडस्केप्स, इम्पावरिश होता है पुअर, जिसका लैंडस्केप है जो पुअर क्वालिटी का हो चुका है, जो अर्थ जो है पुअर क्वालिटी की हो चुकी है. एंड एलिंग एनवायरनमेंट और सिक एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहे हैं. सो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज रेज्ड इन दिस फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, एंड इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन दैट वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, so Mr. Lester R. Brown है, इन्होंने भी अपनी बुक में लिखा है, The Global Economic Prospect is the name of the book,
and he is also writing there, points out that the earth's principal biological systems are four. अर्थ के जो मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, लिविंग सिस्टम्स हैं, दैट आर फोर. फिशरीज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, दैट दे मेक द फुल इकोनॉमिकल सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम. इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड, हमें फूड देने के अलावा these four systems provide virtually all the raw materials for industry. Almost जो है ये सारे के सारे raw materials हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए देते हैं, except minerals and petroleum derived synthetics. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मिनरल्स के अलावा बाकी सभी चीज़ें raw materials जो हैं हमें इन चारों से मिलते हैं. फिशरीज़ जिनसे कि हमें जैसे कॉड लिवर ऑयल वगैरह मिलता है, प्रोटीन फूड मिलता है. फॉरेस्ट जिससे हमें मेडिसिन्स भी मिलती हैं, वुड भी मिलता है फर्नीचर वगैरह के लिए. ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड से हमें अनाज वगैरह मिलता है. सो दीज फोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. और जो हमारा क्लेम है, जो पूरे वर्ल्ड में हम क्लेम करते जा रहे हैं इन चारों चीज़ों के ऊपर कि ये हमारी है, वी हैव टू एक्सप्लॉइट दैट, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ये अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया. इट मीन्स डिस्ट्रक्टेबल लेवल तक ये पहुंच चुका है, डिस्ट्रक्शन के लेवल तक. अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, डैमेज्ड हो रही है. अब उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी डैमेज्ड हो रही है. व्हेन दिस हैपन्स, और ऐसा जब होता है या होगा, फिशेज़ कोलैप्स, फिनिश हो जाएंगी. फॉरेस्ट ऑल्सो डिसअपियर, वो भी फिनिश हो जाएंगे. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, इनफर्टाइल लैंड्स में बदल जाएंगे, वेस्टलैंड में बदल जाएंगे. एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, क्रॉपलैंड्स की क्वालिटी भी फिनिश हो जाती है, एंड अप हो जाती है. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन कॉन्शियस मीन्स सारे जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें तो प्रोटीन चाहिए खाने के लिए. सो मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स हैं दैट आर टेकिंग, कंज्यूमिंग दिस प्रोटीन्स फ्रॉम द एग्स और मीट और नॉन वेज फूड. ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे. उन लोगों के लिए इस प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड में ओवर फिशिंग कॉमन हो चुकी है. फिशेज़ को खाते हैं वो लोग और उनसे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं. सो बहुत ज़्यादा फिशिंग जो है होती जा रही है ये डे बाय डे. इन पुअर कंट्रीज़, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें फॉरेस्ट में से लकड़ियाँ काटी जाती हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं. फॉरेस्ट, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड मीन्स दे आर डिस्ट्रॉयड, दे आर कट इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड. फायरवुड पाने के लिए फायरवुड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग. In some places, firewood has become so expensive. Now, a reasonable line is coming, which has a deeper meaning. Firewood has become so expensive. लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं that what goes under the pot. Look it carefully and understand this line. What goes under the pot now costs more than what goes inside it. कि जो इसके नीचे लगता है, क्या लगता है पॉट के नीचे, जो हम पॉट मीन्स जो बर्तन जिसमें खाना बना रहे हैं उसके नीचे क्या लगता है, लकड़ियाँ, जो फ्यूल लग रहा है वो ज़्यादा महंगा हो चुका है. किससे ज़्यादा महंगा हो चुका है? व्हाट गोज़ इनसाइड इट, खाने से ज़्यादा. जो हमारे इस पॉट के अंदर जो डलता है, खाने से ज़्यादा जो फ्यूल है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स भी कहते हैं कि जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, दीज आर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन. ये वैसे तो एवोल्यूशन के पावर हाउस हैं. जो भी लिविंग बीइंग्स, कुछ भी इवोल्यूट होना है, कुछ भी इवॉल्व होना है, बनना है, दैट आर फ्रॉम दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. Several species of life face extinction as a result of its destruction. But still, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन वही फॉरेस्ट, उसी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पीसीज अब ऐसी हो चुकी हैं जो एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं, जो एंड अप होती जा रही हैं. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड. बहुत अच्छी लाइन्स इसमें, ग्रेट लाइन्स दी गई हैं इस चैप्टर में. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, कि ह्यूमन बींग्स से पहले फॉरेस्ट आए थे. डेजर्ट्स फॉलो,
लेकिन फॉरेस्ट जो है मैनकाइंड से पहले आए थे, और आगे क्या आएगा, डेजर्ट्स आएंगे। कैसे आएंगे डेजर्ट्स? बिकॉज ऑफ आवर ओन डीड्स। कौन से डीड्स हैं हमारे, कौन से एक्ट हैं कि हम फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। सो जो ये हेरिटेज है हमारी, पैट्रिमोनी मीन्स जो हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमारी एक हेरिटेज है, ये ख़त्म होती जा रही है, एंड अप होती जा रही है एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन ईयर्स अ ईयर, मिलियन एकर्स अ ईयर। एक साल में 40 to 50 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और जितना ज़्यादा हम इसको गोबर को, डंग को यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग, इससे जो सॉइल को इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र चाहिए वो भी इट इज़ ऑल्सो डिप्राइव्ड। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. वर्ल्ड बैंक ने भी एस्टिमेट लगाया और कहा है कि अगर हम 5-fold इंक्रीज से, 5 मल्टीपल से फॉरेस्ट प्लांटिंग करते हैं, दैट इज़ नीडेड टू कॉप विद दिस डिस्ट्रक्शन, टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड। जो 2000 में ये डिमांड चल रही है फ्यूल वुड की, उसको कॉप अप करने के लिए हमें 5-fold इंक्रीज में फॉरेस्ट प्लांटिंग करनी पड़ेगी, ट्रीज प्लांटिंग करनी पड़ेगी। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, इन्होंने भी एक दिन कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकंड, कि हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हम 1 एकड़ फॉरेस्ट 1 सेकंड में खो रहे हैं, बट रियलिटी क्या है, इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकंड, कि हम 1 सेकंड में 1.5 एकड़ खो रहे हैं, खाली 1 एकड़ नहीं, 1.5 एकड़ फॉरेस्ट जो है खोते जा रहे हैं। एंड यू हैव हर्ड अबाउट दिस इज़ अ रियलिटी ऑल्सो, कि अभी जैसे पीछे भी तुमने न्यूज़ सुनी होगी, जो अमेजन फॉरेस्ट हैं उनमें आग लगी थी ड्यू टू सम मिस्टीरियस फायर, और पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था दैट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था, बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स की वजह से ही ना कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से हम बाद में हमें ही सफ़र करना पड़ता है। सो वी आर डूइंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट क्लियरली।